Assalamu alaikum, beta. My name is Ufa Kamir and I'm the biology teacher in Beacon House, and I'll be teaching you biology A levels. And we will be doing past papers as you people have soon. You people have your past paper, your MCQ paper. That's paper 1. So I will be doing MCQs with you. I'll try to cover all the topics within these coming few days, inshallah. I'll be starting with the cell structure and we'll do the MCQs of cell structure first with you. So biology will no more be a difficult thing for you, inshallah. It will be a fun for you, and we will study in a very good way. I'll be doing the past papers, I will do the problems, and I will clear the problems of that particular topic to you, and I will specifically focus on those things which I think with my past experiences and with my experiences, I know that are usually a difficult area for the students. I'll be explaining those things to you, and I will be I will focus on those topics particularly, and we'll discuss other topics as well. So let's start doing the past papers first of all of October 2022, the latest ones, because I don't have the papers of February March 2023 session, but I have the papers of October 2022. So I have sorted out, I have made their topical worksheets actually, and I have sorted out the questions of cell structure, biological molecule, enzymes, cell membrane, and transport out of those papers, and we'll be doing different topics one by one. Today we are going to start with cell structure. So let me share the screen with you, and then we will start. Okay, so these are the MCQs of cell structure in October 2022. I am sharing it with you, and we'll be doing those first. I've shared the screen with you. Now let's start with the questions. Now this is the first question from cell structure in October 2022. The photomicrograph shows part of a plant cell. You can see this is a plant cell, and how did you get it that this is a plant cell? You can see and you can identify a plant cell with the help of specifically with the help of these chloroplasts. These are the chloroplasts. You can see these are the chloroplasts because they have these grana and the lamellar thylakoid. You can see the membranous network in this organelle, that is thylakoid membrane, grana, and the lamellar thylakoid which is connecting the grana. So with the help of these chloroplasts, we can easily identify that it's a plant cell, and we know that in plant cell there are in normal plant cell, mesophyll cells specifically, palisade and spongy, there are a lot of chloroplasts, and which are visible over here. And you know that because of a large vacuole which is over here, that's vacuole, because of a large vacuole, nucleus is move towards the side of the plant cell. So this is the nucleus, this is the vacuole, and it's vacuole, this is nucleus, and these are the chloroplasts. This is one plant cell. But the question is not this, but as I told you that I'll teach you the other things as well, so that your concepts will be clear, and it will be clear to you how to identify a plant and animal cell and different organelles in this way. Achha, the question is what's magnification of the cell? So you know the formula for magnification is image over actual, and you're doing it since your O levels, image over actual. And how do you do it? You simply find out the size of the organelle which is asked to be measured. You find out the size of the organelle using the ruler रख के आप उसकी लेंथ या डायमीटर या जो भी उन्होंने मेंशन किया है वो मेजर कर लेते हो, और आप उसकी जो है ना हेल्प से, एक्चुअली ऐसे यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में मैग्निफिकेशन दी हुई होती है, ये आप फाइंड आउट करते हो और उसकी हेल्प से आप एक्चुअल फाइंड आउट कर लेते हो, एक्चुअल मेजर कर लेते हो. अब ये जो मेथड है मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने का, दिस इज कॉल्ड, इफ यू कैन सी दिस स्केल बार अंडरनीथ, दिस इज कॉल्ड एज स्केल बार मेथड. ठीक है, ये एक स्केल बार है जिसके नीचे उन्होंने आपको एक मेजरमेंट दी हुई है. ठीक है, दैट मेजरमेंट विच इज गिवन अंडर दिस स्केल बार विच इज 5 माइक्रोमीटर इज एक्चुअली द
एक्चुअल मेजरमेंट, ये एक्चुअल है, 5 माइक्रोमीटर इज द एक्चुअल। एंड इसके इस आपने ये जो स्केल बार मेथड है ये और आसान है, फॉर्मूला आप यही वाला यूज कर रहे हैं, बट दैट इज मच इजियर टू यूज, क्योंकि उसमें आपको डायग्राम में रूलर वूलर और वो सब किसी ऑर्गेनाइज के ऊपर रख के उसको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना रूलर लेंगे एंड यू आर गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन, you will measure the length of this line, and this line is your image length, actual length is 5 माइक्रोमीटर, जो कि गिवन होगी स्केल बार के नीचे हमेशा लिखी होगी, दैट्स एक्चुअल। और जो इसको मेजर करके आप निकालेंगे वो आपकी इमेज होगी, इमेज लेंथ होगी, जो कि एक्चुअली आपके पास सेंटीमीटर्स में आएगी। अब यू नो के आपको पता है कि आपको अपने यूनिट सेम करने पड़ते हैं, लाइक एंड स्पेशली आपको जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मेजर करना होता है ना, तो आप यूजुअली माइक्रोमीटर्स यूज करते हैं। माइक्रोमीट्री करनी हो या आपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मेजर करने हो ना, तो आप कौन सा यूनिट यूज करते हैं? माइक्रोमीटर्स। तो अगर आप सेंटीमीटर में अपनी मेजरमेंट ले रहे हैं तो सेंटी से मिली करते थे हम ओ लेवल्स में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10, और अगर आप डायरेक्ट सेंटी से माइक्रो में करना चाहते हैं तो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 10,000। तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो सेंटीमीटर वाली मेजरमेंट आई है वो माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यू नो 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर, 10⁻³ मीटर इज इक्वल्स टू मिलीमीटर, एंड 10⁻⁻6, तो आप इनका रिलेशन देख लेना, इनका 10,000 का है, सेंटी और माइक्रो का रिलेशन 10,000 का है, तो 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल्स टू माइक्रोमीटर। तो सेंटी से माइक्रो में करने के लिए आप 10,000 से अपनी सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सेंटी से मिलीमीटर में आ जाएगा। अब आपके पास ये जो स्केल बार मेथड है उसमें स्केल बार के नीचे जो गिवन है आपको वो आपकी एक्चुअल लेंथ है, और इस लाइन को जो मेजर कर रहे हैं वो आपकी इमेज की लेंथ है। तो यहाँ इस लाइन को अप्रोक्सीमेटली आप खुद भी मेजर करके देख ले, मैंने मेजर करके देखा था, तो इट वॉज अबाउट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स 2 सेंटीमीटर। इसको आप 2 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रोमीटर में करने के लिए, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी 20,000 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास इमेज आ गया 20,000 और एक्चुअल आ गया 5, और अब आप इजीली मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अपने फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करें, इमेज क्या है आपका, आ गई है वैल्यू, ये आपके पास 20,000 और एक्चुअल आपका गिवन है 5, यूनिट सब सेम हो चुके हुए हैं, ऊपर भी माइक्रो में कर लिया आपने, नीचे ऑलरेडी माइक्रो में था, दोनों यूनिट सेम है माइक्रो में, तो आपके पास मैग्निफिकेशन निकल आएगी, एक यूनिट कोई दूसरा यूनिट कोई, तो फिर आपका जो है वो गलत हो जाएगा प्रोसीजर। और यूजुअली आप दोनों यूनिट्स माइक्रोमीटर में कर लेते हैं, व्हेन इट इज अबाउट माइक्रोस्कोपिक थिंग्स यू यूज माइक्रोमीटर्स एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू। सो आप इसको करेंगे तो द आंसर विल बी 1 and 5 4s are 20, so it will be 4,000. So the magnification is equals to 4,000 times. So your correct answer for this is D. This type of calculating the magnification of a diagram is called as scale bar method. ठीक है, जिसमें क्या फॉर्मूला वही यूज करते हैं, वही पुराना ओ लेवल वाला, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज ओवर एक्चुअल। एक्चुअल आपको हमेशा गिवन होता है उसमें स्केल बार के नीचे, और इमेज जो है वो आपको स्केल बार की लाइन की जो मेजरमेंट है उसको मेजर करके आता है, वो सेंटी में आएगा, जाहिर है उसको आप माइक्रो में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज विच रो मैचेस ईच ऑर्गेनेल विद इट्स फंक्शन। अब आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यू नो माइक्रोट्यूब्यूल्स से सीलिया और स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। आप हमें पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ये फंक्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स से जो है वो सीलिया बनता है, उसी से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उसी से साइटोस्केलेटन बनता है, ये सारे फंक्शंस हैं। तो द फर्स्ट वन इज करेक्ट। उसके बाद आपका जो सेकंड वन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेसेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, रफ separates some processes from cytoplasm, so that also seems to be correct, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। उसके बाद फ्रॉम साइटोप्लाज्म, बट जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, दैट इज करेक्ट।
अच्छा, गोल्जी बॉडी जो है वो इट मेक्स लाइजोसोम्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। यू नो के जो गोल्जी बॉडी है उसी से सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं और उसी से लाइजोसोम्स भी बनते हैं। ये दोनों ऑर्गेनेल्स जिसमें से कि आपके लाइजोसोम्स जो हैं वो परमानेंट होते हैं विद इन द सेल, दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेस्टिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लेकिन जो आपके वो होते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स वो टेम्परेरी होती हैं, दे जस्ट मूव टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड secrete their secretion out of the cell. So secretory vesicles are temporary organelles and lysosomes are permanent, but they are both made up of made by the Golgi body. So that is also correct. Okay. And centrioles assemble the spindle during nuclear division. You know that centrioles are located in an area which is called as centrosomes. Centrosomes have microtubule organizing centers which organize microtubules to make up spindle fibers which are responsible for the process of nuclear division. So that is also correct. So for this first one, A seems to be correct because all the options are correct. अब आप सोचेंगे कि बाकी ऑप्शंस में क्या क्या गलत है, तो लेट्स डू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस एज वेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स मूव वेसिकल्स विद इन द सेल, दैट इज करेक्ट, क्योंकि साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है और साइटोस्केलेटन का काम ही है ऑर्गेनेल्स को, वेसिकल्स को मूव करना विद इन द सेल। assembles amino acids to make proteins, that is also correct, but रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पर्टिकुलरली ये काम राइबोसोम्स कर रहे होते हैं, सो दैट इज एक्चुअली मोर रिलेटेड टू द फंक्शन, मोर रिलेटेड टू द राइबोसोम्स, ठीक है। बट हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, तो राइबोसोम्स की वजह से ही कर रहे हैं। कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डिस्ट्रॉइंग worn out पार्ट ऑफ सेल, ये भी करेक्ट। और move chromosomes apart during anaphase, centrioles move chromosomes apart during anaphase, तो वो chromosomes are not moved apart during anaphase because of the centrioles. Centrioles to just organize the spindle fiber and actually those are the microtubule organizing centers within the centrosome along with centrioles जो कि ये बनाते हैं spindle fibers और उसमें chromosomes cling कर जाते हैं। बट फिर जब वो spindle fibers जो हैं जो कि actually microtubules हैं, when they break up, when they are hydrolyzed, so then as a result of that breaking up वो क्या होता है कि they are pulled towards the towards the pair of centrioles और उसकी वजह से chromosomes जो है वो split हो जाते हैं at the centromere। तो एग्जैक्टली ये सेंट्रियोल का फंक्शन नहीं है, स्पिंडल्स तो वो बनाता है बट एग्जैक्टली ये फंक्शन नहीं है, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ स्पिंडल्स जो है दैट इज आल्सो इन्वॉल्व। तो इसमें जो आपको थोड़ा एक ये वाला जो है वो इतना क्लियरली फंक्शन नहीं है सेंट्रियोल्स का। सेकेंडली ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है assembles अमाइनो एसिड्स टू मेक प्रोटीन्स, इसमें भी assembles अमाइनो एसिड्स टू मेक प्रोटीन्स, that is basically the role of the transfer RNA which brings amino acids, or that's the role of messenger RNA that assembles amino acids to make proteins। तो बेसिकली ये उन दोनों का फंक्शन है, मतलब ऑल टुगेदर सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है, इसमें ट्रांसफर आरएनए, इसमें मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम सारे इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम सिर्फ इसमें इसको ये नहीं कह सकते कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, उस पे इट्स अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, उसके ऊपर ये काम हो रहा है, लेकिन किनकी मदद से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए ब्रिंगिंग अमाइनो एसिड्स, विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए which is actually assembling those amino acids according to the codons of the messenger RNA, and ribosomes जो के इन codons को जो है वो read कर रहे हैं on the messenger RNA. So it's altogether an activity of all these three along with the of all these three at rough endoplasmic reticulum. तो rough endoplasmic reticulum is the site of for the synthesis of protein, but exactly वो ये assembling का काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर भी वही बात है कि सेंट्रियोल्स जो है दे प्ले रोल इन असेंबलिंग द माइटोटिक स्पिंडल फॉर अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, बट बाद में फिर वो स्पिंडल्स जो हैं वो अगेन इट्स अ प्रोसेस जिसमें स्पिंडल्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं। So these two are not exactly the functions of the organelles which are being mentioned. These are the sites where these functions are going on along with other things as well. So that's why we don't consider it correct. अब ये microtubules move chromatids apart during anaphase,
माइक्रोट्यूब्यूल्स ही ब्रेक होती हैं, तो क्रोमैटिड्स जो हैं दे आर स्प्लिट अप एंड दे मूव अपार्ट ड्यूरिंग एनाफेज, तो दैट इज करेक्ट. रेफरेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइज प्रोटीन्स, ये जो मॉडिफाई का वर्ड है दैट इज रॉन्ग बिकॉज दे डोंट मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन इज डन बाय द गोल्जी एपरेटस. तो ये यहाँ गलत हो गया और इसलिए ये यहाँ गलत हो गया, तो हम आगे नहीं देखेंगे, फिर भी देख लेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो यू नो दैट गोल्जी मॉडिफाइज प्रोटीन्स बाय एडिंग, as it synthesizes carbohydrates, sometimes it adds those carbohydrates into proteins. तो ये गोल्जी का फंक्शन है. And centrioles move cilia, centrioles do not move cilia. Cilia are made up of microtubules and they themselves move because microtubules can move. So that is also not the function of centrioles. अब microtubules form part of the cytoskeleton, that is correct. Bifundal plasmic reticulum makes triglycerides and phospholipids, not at all correct because these are fats and lipids, and these are lipids are synthesized at smooth endoplasmic reticulum, not rough endoplasmic reticulum. तो ये यहाँ गलत हो गया. Golgi modifies proteins by adding carbohydrates, correct. Centrioles move individual cells. Move individual cells, no, it does not have to do with the movement of the cells, that is also wrong. So I've discussed all these, that why they are not considered to be correct, and I've briefly discussed the functions of these organelles as well for your understanding. So A is the most appropriate, is the correct one, not the most appropriate because all the 4 options are correct. Then we have third option, where are ATS ribosomes found? ATS ribosomes, you know, are present only in eukaryotes. And eukaryotes में ये किधर होते हैं? उनके साइटोप्लाज्म में ATS ribosomes होते हैं. So that is correct. Chloroplast won't be having ATS. It has 70S. Mitochondria would be having 70S. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स, तीनों में आपको पता है कि 70S राइबोसोम होते हैं. इनमें ATS सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं. सो ATS ribosome is within the eukaryote. So option 2 is the only one which is the correct option. ठीक है. उसके बाद which feature when present in organism enables it to be identified as a prokaryote, जो कि particularly सिर्फ prokaryote का हो ना, वो वाला हम देखेंगे. Cell wall तो plant cells में भी होती है. Cytoplasmic DNA is particularly the feature of prokaryotes, क्योंकि सिर्फ prokaryotes ही हैं जो कि pro means before and karyote means nucleus. So they are the organisms which do not have a nucleus before and nucleus. So they don't have a nucleus. तो न्यूक्लियस नहीं है तो फिर उनका डीएनए किधर है? साइटोप्लाज्म में ही होगा. तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. सेल वॉल प्लांट सेल्स में भी होती है, न्यूक्लियस एनिमल प्लांट दोनों में होता है, और प्रोकैरियोट्स में तो हरगिज नहीं होता, तो इसलिए तो बिल्कुल नहीं. और राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, प्रो एंड यू. तो जो आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स की, वो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है. What's the function of the nucleolus? Nucleolus, you know, is responsible for the synthesis of ribosomes. जो हम इसका function पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं कि it synthesize ribosome. How does it synthesize ribosome? It synthesize ribosome because actually it synthesizes the ribosomal RNA. ठीक है. ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोलस जो है वो सिंथेसाइज क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए बनाता है, और आपकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे प्रोटीन्स बनती हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स आती हैं और वो प्रोटीन्स राइबोसोमल आरएनए जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर है. तो न्यूक्लियोलस में जो है ऐसे है ना, ये आपका न्यूक्लियस है. Let me draw the diagram so that it would be more clear to you. तो ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया, विच इज अ लूप ऑफ डीएनए. यू नो ना न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस भी एक लूप ऑफ डीएनए, गुच्छा है, डीएनए का गुच्छा है, और जिसमें से ये आप देखेंगे क्रोमैटिन थ्रेड्स इस तरह से निकल रहे हैं जो कि हमें नजर आते हैं. तो ये जो गुच्छा है डीएनए का, याद रखें बेटा, जहां भी डीएनए होता है दैट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू सम टाइप ऑफ आरएनए. अब वो कौन सी टाइप ऑफ आरएनए? जैसे आपका जो ये जो आपका ये वाला जो डीएनए है ये क्रोमैटिन थ्रेड्स का, दैट मेक्स अप मैसेंजर आरएनए.
कि इससे मैसेंजर आरएनए बनता है। और ये जो आपका न्यूक्लियोलस का डीएनए है, इससे ट्रांसफर आरएनए बनता है और राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए बेसिकली बना रहा है। तो जब ये जो न्यूक्लियोलस का डीएनए है उससे जब राइबोसोमल आरएनए बनेगा, न्यूक्लियोलस के डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनेगा। ये राइबोसोमल आरएनए जब बनेगा तो इट इज गोइंग टू लीव द nucleus through the nuclear pore, where from the endoplasmic reticulum, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होंगी। वो राइबोसोमल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी होंगी। राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स आर गोइंग टू कंबाइन and together ribosomal proteins and ribosomal RNA together they both make up ribosomes. Okay, or ribosomes भी I should have drawn properly instead of drawing in this way. Ribosomes are also having a larger subunit like this, and they have a smaller subunit. And you know that when protein synthesis starts, then they join, otherwise they both roam around within the cytoplasm freely as separate components, but they join up in order to attach messenger RNA. Larger and smaller units of our ribosome join up during protein synthesis. तो अदरवाइज नॉर्मली हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये आपके पास राइबोसोम है जो कि राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बनता है। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए बनाना, जो कि बाद में राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है सारी एक्सप्लेनेशन के बाद कि द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज सिंथेसाइजिंग द राइबोसोमल आरएनए। डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये बेटा नेक्स्ट आपके पास आ गया है माइक्रोमीट्री का क्वेश्चन है। माइक्रोमीट्री आपके प्रैक्टिकल में यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रैक्टिकल। तो इफ यू आर गुड एट प्रैक्टिकल्स तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। इवन देन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ताकि आपको कोई उसकी कंफ्यूजन ना रहे। बेटा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए ना हम माइक्रोमीट्री करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीट्री करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। उसके लिए ना हम दो स्केल्स यूज करते हैं। एक स्केल तो होता है आईपीस ग्रेटिट्यूड, ठीक है, जो कि हमेशा आपकी आईपीस के अंदर आपके माइक्रोस्कोप में फिट होता है, ऑलरेडी फिट इन योर माइक्रोस्कोप इन योर आईपीस, दैट्स कॉल्ड आईपीस ग्रेटिट्यूड। एक दूसरा स्केल होता है जो यूजुअली लैब में हम लोग आपको देते हैं, हमने उसको एक स्लाइड के ऊपर पेस्ट किया हुआ होता है, दैट्स कॉल्ड एज स्टेज स्केल। स्टेज स्केल माइक्रोमीटर उसको कहते हैं। और जो हम आजकल यूज करें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, कैम्ब्रिज सिलेबस, उसमें उस स्टेज स्केल माइक्रोमीटर की एवरी डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ईच डिवीजन ऑफ द स्टेज स्केल इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो हम वो 0.1 मिलीमीटर वाली जो है ना वो हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। जो आपके पास स्टेज स्केल है ना उसकी एक डिवीजन ये, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर वाला जो है ना ये आपका स्टेज स्केल है, द थिकर वन। ठीक है, ये जो स्टेज स्केल है इसकी एक डिवीजन 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। और ये जो नीचे वाला स्केल है दैट्स आईपीस रेटिक्यूल, इट हैज 100 डिविजन्स एंड ईच 100 रीडिंग्स एंड ईच रीडिंग हैज 10 डिविजन्स, यानी 10, 20, 30, 40, टोटल इट हैज 100 डिविजन्स। तो हम क्या करते हैं कि आईपीस के अंदर तो हमारा आईपीस रेटिक्यूल फिट होता है, फिक्स होता है। हम उसके साथ अपने स्टेज स्केल को स्टेज के ऊपर, जो स्लाइड है जिसके ऊपर स्टेज स्केल हमने पेस्ट किया हुआ होता है, हम उस स्लाइड को स्टेज के ऊपर रख देते हैं और उसको फोकस करते हैं। और फोकस इस तरह करते हैं कि हमारे स्टेज स्केल और हमारे आईपीस की जो रीडिंग्स हैं वो या जो डिविजन्स हैं वो कोइंसाइड करें। और कोशिश ये करते हैं कि दोनों के जीरो मिला लें, वो आसान हो जाता है। दोनों के हम जीरोस मिलाने की कोशिश करते हैं। ये जैसे हमारा स्टेज स्केल है ये उसका जीरो है और ये उसकी फर्स्ट रीडिंग, एंड देन सो ऑन। तरह से ना नहीं, ये तो आपका वो हो जाएगा, कर दिया। आईपीस को मैं अलग ड्रॉ करती हूँ, दैट्स द स्टेज स्केल। ये आपका इस तरह से ना आपका ये स्टेज स्केल है, ये इसकी एक डिवीजन है, इस तरह से वन डिवीजन इसकी, इसी तरह इसकी टू डिवीजन और ऐसे होगा। तो
मैं ये पिछले वाला इरेज नहीं करी, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो ये एक डिवीजन है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपना जो आई पीस है ना उसका जीरो और स्टेज स्केल का जीरो जो है ना वो मिला लें। उसमें हमारे पास इस तरह से जो है ना मैग्नीफाई होकर स्टेज स्केल बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें आई पीस उसके सामने छोटा लगता है। इस तरह से ना हम कंसाइड कर लेते हैं उनकी रीडिंग्स, ऐसे हम करते हैं। यानी कोशिश करते हैं कि हमारा जो आई पीस है उसका जीरो, और हमारा जो स्टेज स्केल है उसका जीरो, इस तरह से कंसाइड कर जाए। स्टेज स्केल जरा थिक हो जाता है, उसकी डिविजन्स भी आपको थिक सी नजर आती हैं, रीडिंग्स उसकी लाइंस थिक नजर आती हैं, क्योंकि वो मैग्नीफाई हुआ हुआ है स्टेज पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे है, तो वो ज्यादा मैग्नीफाई हुआ हुआ है, तो वो आपको ना ऐसे ही नजर आता है बहुत थिक होके। आप उसके जीरो को और अपने जो आई पीस का जीरो है उसको उसके सेंटर में इस तरीके से अरेंज करते हो कि वो कंसाइड हो जाते हैं। यूजुअली हम ये करते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको लैब पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बट इस वक्त एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन फॉर यू। Like they have just given you the picture in which state scale is coinciding with the eyepiece gratitude। नीचे वाला eyepiece है, ऊपर वाला state scale है, ऑलरेडी वो coincide कर रहे हैं। और state scale का, क्योंकि हमें नहीं पता जीरो स्टेज स्केल का किधर है, तो हम इसी पहले वाले को ही अपना जीरो कंसीडर कर रहे थे कि जो स्टेज स्केल है उसका जीरो जो है वो 10th डिवीजन ऑफ आईपीस के साथ कंसाइड कर रहा है। हम इस तरह से इसको ले लेते हैं, और जो है ना ये सेकंड डिवीजन हो गई, और एक डिवीजन स्टेज स्केल की 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। अब वो आपसे क्या रहा है कि द डायग्राम शोज अ स्टेज माइक्रोमीटर, यस इट इज शोइंग विद डिविजन्स 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, यस viewed through an eyepiece gratitude, eyepiece containing a gratitude। अब ये आपका जो एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप है, द एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला भी उन्होंने एरिया का आपको दे दिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 होती है, which is being given to you. A student calculate the area of field of view of the microscope using the information provided and value of pi। तो वैल्यू ऑफ पाई तो 3.14 है, और यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी गई है, तो आपने क्या निकालना है, आपको इस फॉर्मूला के लिए पाई तो गिवन है, रेडियस निकालना है। रेडियस आपका जो है वो जाहिर है इधर सेंटर तक आएगा, ये आपका रेडियस है, ठीक है। एक सर्कल है आपका, तो सर्कल का रेडियस यही होता है ना, ठीक है। तो ये आपका रेडियस है। अब आप देखिए रेडियस में आईपीस के कितने ग्रेटिट्यूड्स आ रहे हैं, 0 से 10, 10, 20, 30, 40, 50। तो आपके जो रेडियस है उसमें 50 ग्रेटिट्यूड्स है। आपको नहीं पता कि ये 50 कितने स्टेज के बराबर, स्टेज स्केल के बराबर है, लेकिन आपको अपनी कैलिब्रेशन के लिए ये बात पता है कि आपका, तो क्लियर कर देती हूँ, आपको ये पता है कि योर ईच स्टेज स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10, यहाँ से यहाँ तक 10 डिविजन्स, 20 डिविजन्स, 30 डिविजन्स, 40। सो आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि स्टेज स्केल आई पीस रेटिक्यूल, आपकी कितनी एक स्टेज स्केल, यानी कि ये जो आपकी एक स्टेज स्केल जो उसने बताया है कि 0.1 मिलीमीटर के बराबर है, सो 0.1 मिलीमीटर equals to 40 divisions, ये 10, 20, 30, 40, 40 divisions of eyepiece are equals to 0.1 millimeter of the state scale। तो फिर आपकी कितनी डिविजन्स हैं, जो कि 50, 10, 20, 30, 40, 50, जो कि आपका रेडियस है 50 रेडियस के बराबर होंगी। एक्चुअली आप आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दिस वे, that would be x is equals to 50 into 0.1 divided by 40, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी इन मिलीमीटर्स, r की वैल्यू आपके पास मिलीमीटर्स में आ जाएगी। उसको आप क्योंकि ये मिलीमीटर में ना, एक डिवीजन इक्वल टू मिलीमीटर, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सिंपल इजीली कर लें, उसको आप वो मल्टीप्लाई कर लेंगे विद 10,000, विद सिंपली 1000, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, लेट मी कैलकुलेट दिस फॉर यू, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑलरेडी वो माइक्रोमीटर में हो जाएगा। तो हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं।
0.125 इसका आपका आता है 0.125 मीटर्स, ठीक है। अगर हम इसको माइक्रो में कर लेते हैं यानी मल्टीप्लाई बाय 1000 that would be 125। आपने ये कर लिया 25 माइक्रोमीटर हो गया। Which answer has been rounded correctly to an appropriate number of significant figures? तो अगर आप अपना जो आपकी वैल्यू आई है 125 माइक्रोमीटर में आई है, तो आपका एरिया निकालना है आपने, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आपका है 3.14 और आर आपका आ चुका है 125, और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो इंटू 125 कर देते हैं। ये आपका आंसर आता है 49,062.5 एंड दैट इज पॉइंट को अगर आप इधर 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 लाते हैं तो दैट इज डी। डी आपका करेक्ट आंसर इसका बन जाता है बाय डूइंग दिस। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, लेकिन मतलब मैंने तो आपको खैर बहुत डिटेल में समझा दिया है ना। आपके लिए तो सिंपल सा काम है, आपने देखा जी एक डिवीजन ऑफ स्टेट स्केल इक्वल्स टू 40 डिवीजन ऑफ आईपीस, देन 50 डिवीजन ऑफ आईपीस वुड बी इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट स्केल। आपने उसको हाउ मेनी स्टेट स्केल डिवीजन आपने कैलकुलेट किया, मिलीमीटर में आंसर निकला, उसको माइक्रोमीटर में किया आपने। सॉरी ये आंसर मिलीमीटर में आया था, आई एम सो सॉरी, मिलीमीटर में आता, मीटर में आता नहीं आता था, मिलीमीटर में था तभी आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, मिलीमीटर में आ गया क्योंकि ये मिलीमीटर है ना। और फिर आपका आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके माइक्रो में कर लिया, आपने पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज पुट की, आपका ये आंसर आया, दैट इज डी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं वेयर आर सिस्टर्नी फाउंड इन अ सेल। बेटा सिस्टर्नी क्या होती है, दीज आर एक्चुअली दिस इज द मेम्ब्रेनियस नेटवर्क। ये आपका न्यूक्लियस है ना, आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस जो है उसी से ही, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से ये उसका जो मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही वो निकल रहा होता है। और फिर इस तरह से आपकी इनक्लोज्ड कैविटीज होती हैं, वो एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड इनक्लोज्ड इनर कैविटीज जो होती हैं, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आपको पता है यहीं से जो है ना वो बल्ज आउट हो रही होती हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड दे मूव एंड टुवर्ड्स द गोल्जी वेयर दे गोल्जी जाके वो गोल्जी के साथ जो छोटी छोटी वेजिकल्स बर्ड ऑफ होती हैं फ्रॉम द रफ एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे फ्यूज विद द गोल्जी टू बी मॉडिफाइड। और ये जो बीच में वेजिकल्स है ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स है जो यहाँ से मटेरियल लेके गोल्जी पे आ रही है। तो बात है सिस्टर्नी की, सिस्टर्नी जो है ना वो ये मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है, इसीलिए मैंने ये सारा ड्रॉ किया और कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी आपको साथ दिए। ये वाला जो मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है ना सारा मेम्ब्रेनियस फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस नेटवर्क जो है ये सारा, ये आपका इसको सिस्टर्नी कहते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट बोथ इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी। गोल्जी की भी जो ये तो इंटरकनेक्टेड है, गोल्जी की जो ये मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट इवन देन इट्स कॉल्ड एज, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इस गोल्जी की भी इट्स कॉल्ड एज सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी आर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन गोल्जी, दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, यानी ये जो मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है बोथ इन गोल्जी एंड रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स कॉल्ड सिस्टर्नी, इट्स प्रेजेंट इन बोथ, पर माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्नी नहीं है।
माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज होती है जिससे बच्चे अक्सर मिक्सअप कर देते हैं विद सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इज इन दीज टू। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई होते हैं। क्रिस्टाई क्या होते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये वाली। और ये जो फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या ये जो मैं बना रही हूँ, ये फोल्डिंग्स, दीज फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, finger like projections of the inner membrane are called as, these are called as cristae. ठीक है, तो ये आपके क्रिस्टाए हैं जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज होकर फॉरन माइटोकॉन्ड्रिया पे क्लिक कर दे। इट हैज क्रिस्टाए एंड दीज टू हैव सिस्टम। देन विच रो मैचेस द फंक्शंस टू, मैंने करेक्ट ऑप्शन आपको बता दी 1 and 2A। विच रो मैचेस द फंक्शंस टू द सेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब आपके पास सेल कौन सा वाला जो है वो मैच कर रहा है विद द सेल स्ट्रक्चर्स। यू हैव vacuole store water, sugar and pigment, correct. Nucleolus manufactures messenger RNA, incorrect. It manufactures ribosomal RNA, so let's not move forward. Vacuole exports proteins, that's done by the secretory vesicles. मैन्युफैक्चर, ये इसमें फिर आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर्स राइबोसोम है वो तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला गलत है और ये भी इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। सेल रिकग्निशन, लाइसोसोम्स नहीं इन्वॉल्व होते, सेल रिकग्निशन नहीं होते। ठीक है, ये गलत जो है मैं वो भी साथ करवाती जा रही। वैक्यूल स्टोर्स वाटर, शुगर एंड पिगमेंट, करेक्ट। न्यूक्लियोलस मैन्युफैक्चर्स राइबोसोमल आरएनए, करेक्ट। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व, करेक्ट। लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, करेक्ट। ऑल फोर आर करेक्ट। ठीक है, आगे एक्सपोर्ट्स प्रोटीन्स, ये यहीं पे ही गलत हो जाता है क्योंकि डजंट एक्सपोर्ट प्रोटीन, सो लेट्स नॉट डू इट फर्दर। सी इज द करेक्ट वन। विच स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन प्रो एंड यूकैरियोट्स, कौन से आर दोनों में जो है वो प्रेजेंट होते हैं? प्रो एंड सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जहाँ जहाँ न्यूक्लियस है ना या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है उसको तो सीधा सीधा आप खत्म करते हैं। तो इस हिसाब से आपकी ऑप्शन ए, सी और डी तो वैसे ही निकल गए। सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम दोनों में होते हैं, आपका बी करेक्ट हो गया। विच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। ठीक है, अब ये आप गौर करें, ऑल वायरसेस की बात हो रही है। ठीक है, अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन। ये कौन से एक्चुअली ये आपके होते हैं डीएनए एंड आरएनए में। ठीक है, डीएनए में आपके कौन से जो है नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं? 4। डीएनए में आपकी होती हैं थायमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और आरएनए में कौन सी होती है? आरएनए में थायमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है। एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन उसी तरह होते हैं। अब बेटा ऑल वायरसेस में किसी में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होगा। जिनमें डीएनए होगा उनमें तो थायमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होंगे, लेकिन जिनमें आरएनए है उनमें थायमीन नहीं होगा। हाँ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होंगे। आपके पास ये जो एडेनिन, साइटोसिन है ये तो सब वायरसेस में होंगे, चाहे उनमें आरएनए है चाहे डीएनए, क्योंकि यू नो सम वायरसेस हैव डीएनए, सम हैव आरएनए। तो वो सब वायरसेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिनमें आरएनए है उनमें थायमीन तो नहीं होगा, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता। थायमीन होता है सिर्फ डीएनए में, आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो आपका ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट, विच आर इन ऑल द वायरसेस। 2 and 3, 2 and 3 दिस वन। नेक्स्ट इज, अगेन आपको नजर आ रहा है ये आपके ग्रेना है और ये आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और ये पता लग रहा है अगेन आपको थाइलेकोइड मेम्ब्रेनियस नेटवर्क से ही पता लग रहा है कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोज अ क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम अ टोबैको लीफ if actual length of the chloroplast measured along xy is 10 micrometer, what's the magnitude? अब ये स्केल बार मेथड नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आपको इस लाइन की जो एक्चुअल लेंथ है ना वो दे दी है कि जनाब वो है आपकी 10 माइक्रोमीटर, और उनसे उनकी आपसे डिमांड है एग्जामिनर की कि आप इस लाइन को मेजर करें यूजिंग द रूलर, और उसको आप
मेजर करके, यानी ये आप फाइंड आउट करें और फिर आप वही अपना फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज ओवर एक्चुअल में वैल्यूज पुट करके आप इसको मैग्निफिकेशन निकाल लें। ठीक है, तो अगर हम इसको मेजर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये जो इसकी लेंथ आती है दैट्स अबाउट 6.3। ठीक है, इसको अगर आप मेजर करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे इसकी 6.3 आती है। ठीक है, 6.3 अगर इसकी मेजरमेंट आ रही है तो ऑफ कोर्स आप 6.3 को माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल आपका माइक्रो में, वैसे भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जब भी मेजरमेंट्स करते हैं हम माइक्रोमीटर में अपने यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप 6.3 को मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगी माइक्रोमीटर में करने के लिए, तो दैट विल बिकम 63,000। ठीक है, 63,000 हो जाएगा। अब आप अपनी वैल्यूज पुट करें, इमेज की लेंथ आ गई आपकी 63,000 और एक्चुअल आपका जो है वो उन्होंने आपको बता दिया दैट्स 10। इसको जब आप करेंगी, सिंपल आसान सी चीज है, 6300 हो जाएगा, 6300 आपकी। Some cell structures are listed, endoplasmic reticulology, mitochondria. Which cell structures do not contain cristae? Do not contain cristae। ठीक है, जिनमें क्रिस्टाई नहीं। क्रिस्टाई किधर होता है, आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि क्रिस्टाई जो है वो होता है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, या जो फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की, क्रिस्टाई। ठीक है, सो आपको फिर तो इजीली समझ आ गया कि क्रिस्टाई किस में हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। वो कह रहा है डू नॉट कंटेन क्रिस्टाई, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी नहीं होते, इसमें भी नहीं होते, इसमें भी, इसमें तो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होते हैं, इन तीनों में नहीं होते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 4, जिसमें नहीं होते। इन चीजों पे भी बेटा गौर किया करो, ऑल, डू नॉट पूछ रहा है या पूछ रहा है कि हैं। ठीक है, उसने तो इसको बोल्ड भी किया हुआ है, तो वो तो आप और इजी हो। अब ये देखो, ये सारे अक्टूबर 2022 के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो कि अक्टूबर 2022 के तीनों वेरिएंट्स 11, 12, 13 में आए थे, तो मैंने वो सारे इकट्ठे कर लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। विच लेटर रिप्रेजेंट सेल स्ट्रक्चर्स वेयर मैसेंजर आरएनए में बी फाउंड? मैसेंजर आरएनए किस किस में हो सकता है? देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम होता है, उसकी अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, उसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, और जहां डीएनए और राइबोसोम है वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वहां मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो इसमें भी डीएनए और राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म के भी जो है, साइटोप्लाज्म में तो मैसेंजर आरएनए वैसे ही होता है ना, राइबोसोम पे आकर अटैच हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैसेंजर आरएनए बनता है, क्योंकि उसका भी राइबोसोम है, उसका भी डीएनए, उसकी भी अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी अवेलेबल है, तो मैसेंजर आरएनए तो बनेगा। और न्यूक्लियस के अंदर भी मैसेंजर आरएनए जो है वो क्योंकि जो सिंथेसिस है मैसेंजर आरएनए की, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है ना, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस, दैट्स द क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं उनसे जब उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इसी डीएनए से आपका मैसेंजर आरएनए बनता है ना, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। तो इसका मतलब है कि मैसेंजर आरएनए इज प्रेजेंट इन ऑल द थ्री। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which row is correct for typical prokaryotic cell and mitochondria? Typical prokaryotic. अच्छा जी, 70S राइबोसोम दोनों में होता है, आपको पता है, तो ये गलत हो गया, क्यों नो लिखा हुआ है। सर्कुलर डीएनए दोनों में होता है, यहाँ नो कैसे हो गया, गलत। पेप्टिडोग्लाइकेंस, पेप्टिडोग्लाइकेंस आपके प्रोकैरियोट्स में तो होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तो सेल वॉल नहीं होती जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई हो, तो इट सीम्स टू बी सी। Small size 1 to 5 micrometer long, that size is of a prokaryotic cell। क्या वो भी नो लिखा हुआ है, बट दैट साइज इज नॉट ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो 1 माइक्रोमीटर साइज होता है तकरीबन, और प्रोकैरियोट्स का 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है, और इन दोनों में नो लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि दोनों में वो स्पेशली इसमें यस कर सकते थे, इनका होता ही 1 माइक्रोमीटर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which statement is correct? A virus is composed of a protein coat which surrounds RNA or DNA. It seems to be correct for both for the viruses. ना, वायरस की बेस्ट डिस्क्रिप्शन प्रोटीन कोट है जिसके अंदर या आरएनए या डीएनए।
Suberin and cellulose are found in all plant cell walls. No, suberin is only in the endodermal cells and the passage cells. So that's incorrect. Plasmodesmata and centrioles are found in plant cells. Centrioles are not in plant cells. They are only in animal cells. Prokaryotic cells contain an endoplasm. No, they do not have any membrane bound organelle. तो prokaryote में तो endoplasmic reticulum होता ही नहीं है. ठीक है, ये करेक्ट है. The only correct option, a virus is composed of a protein coat which surround either RNA or DNA. So 15 is the correct option. ठीक है. अच्छा, तो ये थे बेटे सारे आपके जो है ना MCQs जो के आपके 2022 अक्टूबर 2022 में से सारे मैंने कलेक्ट किए थे. सेल स्ट्रक्चर के MCQs थे ये, और ये मैंने जो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो जो मुझे लगा कि मुझे ये एक्सप्लेन करने चाहिए. आई कीप ऑन सॉल्विंग मोर पेपर्स ऑफ द सेम टॉपिक सेल स्ट्रक्चर, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे. डू फॉलो माई वीडियोज. I will share my next video inshallah on biological molecule, in which I will be doing the past papers of October 2022, and I've already sorted out the questions of biological molecule from those 3 variants 11, 12, 13 of October 2022. वो हम करेंगे. Once I'll be done with all the 11 chapters, तो फिर मैं दोबारा आपके साथ May 2022 के पेपर्स करना शुरू कर दूंगी, और जो उसमें इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे. इस तरह विद टाइम आपके concepts clear हो जाएंगे. Do share your comments and your ambiguities and your problems so that I can arrange a class in which I will not be doing past papers. I will only be doing those topics which are not clear to you. मैं आपको वो वाले टॉपिक करवा दूंगी, तो वो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी. ठीक है. So inshallah we'll see you in another video on biological molecule. Thank you very much. Allah Hafiz.